नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। कंबला के कलाम दे, कंबला के कलाम दे, ले अम्बरा दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। उसदे बचन वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, बचना ते रख अगे बधना विश्वास लाड़ी ने। उसदे बचन वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, बचना ते रख अगे बधना विश्वास लाड़ी ने। तो हमारे मध्य में प्रिय आदरणीय पासबान रेवरेंड डॉक्टर आशु गिल के गवाही को निश्चित करने के लिए उनके बेटा पास्टर प्रिंस अभी सामने आएंगे और 2 मिनट में वो उनके मम्मी के साथ वो सेवा है उसके विषय में संक्षिप्त में हमें कहेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. First of all, I want to welcome all of you and give my thanks for your presence here on this great and memorable day. I'm grateful for the opportunity to share my thoughts with you all on this auspicious occasion. And the time limit, even though it's very short, I'll try to wrap it up as quick as possible. It's a great honor and privilege for me to be called my mother's son. Today, as I witness this great honor bestowed upon my dear mother, what do I see or feel as her son? What can I testify as I am flooded with all the memories and all the testimonies that I have seen throughout my life? I want to put into words the life of my mother in this little time I have offered. Growing up, I see and learn from this beautiful woman, a woman of pristine and highest moral character. I see the purity of Christ in her, the goodness of God that she had infilled in me. I see her pain, I see her sufferings, and I see her joy in the simplest of things. I see a God-fearing woman, an extremely loving and faithful wife, instilling her deepest love in me and my sister, teaching, admonishing, rebuking, and disciplining me and my sister into living a God-fearing life. And not just by words alone. Everything she would first do by herself. She lived a perfect example in front of me. I saw the journey of Sister Ashu Francis, my mother, up till now. And I want to tell you that it's filled with tears, pain and suffering, and sacrifice. I see the reflection of St. Paul in her according to Philippians chapter 1 verse 21, which says, "For to me to live is Christ, and to die is gain." If there's anyone I know who lived according to these words and served God with such passion, it is no one else other than my dear mother. I stand as a witness to her sufferings in Christ. I stand witness to her sacrifices for the service of our Lord Jesus. I've seen her tears and sorrow every time she was questioned and doubted to serve God. How she was discouraged and belittled for serving God because she is a woman, and her own siblings doubted her.
And it's said that she's a woman and she cannot serve God. Excuse me. I saw her grieving many times, but her passion and love for Lord Jesus Christ only intensified. She never gave up serving God because of the opinions of others. Excuse me. Instead, she prayed more and fasted more and labored more in Christ. And the countless testimonies that I saw in the lives of thousands of people due to her devotion to the ministry are a testimony in itself, proving God's authority over her ministry and her authenticity as a true and anointed servant of God, chosen and elected by Christ himself. God have silenced the voices of all those people who doubted and discouraged her from serving Christ. When I see my mother, I see a phoenix rising from the ashes. I see an eagle soaring into the high skies for Christ. When I see her, I see Isaiah 60 realized. Verse 1 says, "Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." Truly today, my mother's light has shone in this world, and the glory of God has risen upon her. When I see my mom, I see her sacrificing everything for Christ. Her beauty, her body, her luxuries, her comfort, her family, everything she gave for Christ. Christ comes first to my mother and not her own family. And I'm proud that she chose Christ and not us. Hallelujah. Today, I am the proudest son on earth when I see my mom, because I see the virtuous woman of Proverbs chapter 31. Verse 30, "Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised." Amen. When my mom started fasting for the ministry, she was extremely fair and beautiful, and she had this pink radiance on her face. I wish you could have all seen it, but she sacrificed her beauty for the ministry and service of God. This coming 31st of January marks the completion of her fasting for 10 years. If you all see her face today, it's 1/10 of the beauty she had on her face 10 years ago. When I was told that my mother was being bestowed with the title of bishop, my joy was unending and my heart felt so proud. Truly, I say to you that she have lived this verse according to Proverbs chapter 31 verse 30. I see the pure and holy bride of Christ when I see my mother. And it is not because I am her son. I say this out of complete reverence and honesty, that I have seen my mother living for Christ, not just speaking, not just preaching, but her life is a testimony on its own. If there's any woman I know who's deserving and worthy of the title of bishop, undoubtedly it's my mother, Sister Ashu Francis Gill. May God bless you. Thank you. थैंक यू ब्रदर। बेटा की जो गवाही है, जो मम्मी के साथ इतने साल रहे, कितना अद्भुत है। कितने लोगों को समझ में आए मुझे पता नहीं है, परंतु मैं एक विषय संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि वो अपने मम्मी के दर्द को देखा है और प्रभु के लिए, उनके सेवकाई के लिए, राज्य के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है और त्यागपूर्ण जीवन जिया है, उसके लिए हम जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें। समय चल रहा है, पाम की टानियां, क्या कहते हैं इनको? खजूर की टानियां। यीशु यरूशलेम लौटते हैं, गदी के नीचे खजूर की टहनियां। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज बहुत ही सुंदर। जिन्हें कोई नहीं पूछता, जरा हाथ दिखाइए। जो सोचते हैं हमारी पूछताछ नहीं होती। क्या ऐसा कभी लगा? किसी को नहीं लगा? फिर आप गलत और झूठ बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है, जब हम ये बात कहते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछता, मेरा पति नहीं पूछता, मेरे भाई ने नहीं पूछा, मुझे लोग नहीं पूछते, मुझे नीचा दिखाते हैं। हालेलुया। जितनी भी
हाउसवाइफ हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। ये सच है। वो अपने घर में अपने पति के कपड़े धोती हैं, बच्चों को संवारती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, उनका खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, पोछा मारती हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूछताछ कहीं नहीं गिनी जाती और उन्हें कहा जाता है घरेलू औरत। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ जाके कहो गदी बांधी हुई है। कहां कहां बांधी पास्टर जी? जोर से बोलिए। हालेलुया। गदी बांधी हुई है। चेलों ने कहा प्रभु जी कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ बोलेंगे तो नहीं, कोई मना तो नहीं करेगा? बोला जाकर कहना प्रभु को प्रशोषण है। हालेलुया। प्रभु को चाहिए। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या होता है? चेले जाते हैं, गदी मांगते हैं, गदी खुलती है, गदी आ जाती है। हालेलुया। बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद सिस्टर आशु अपने घर में एक गदी की तरह बांधी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आते हैं और कहते हैं मिस्टर फ्रांसिस मुझे इसका प्रशोषण है, ये चाहिए मुझे दे दो। हालेलुया। और फिर उन्होंने दे दी। यीशु उस पे सवार होते हैं। मुंबई से वो गदी बाय प्लेन यहाँ पहुंचती है। हालेलुया। हालेलुया। सही सेवा का मतलब यही होता है कि हम गधे हैं, हम गदियां हैं, हम कैद हैं, घरों में बंद हैं। वो राजा, वो प्रभु आप पर बैठना चाहता है। चलिए बिठा लीजिए उसे आपके पांव के नीचे। वो टानिया, वो कपड़े, वो अच्छी अच्छी चीजें सब लोग बिछाएंगे। यीशु तो गदी पर बैठे हैं, पैर तो गदी के चल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे इस गदी पे बहुत गर्व है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं यीशु की वो गदी जो घर में बंधी हुई थी उस पे यीशु बैठा और यहाँ ले आया। और आपके बीच में इस समय कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग मुझे देखते हैं, यूट्यूब पे भी बाद में देखेंगे। कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए फूल लाते हैं, मेरे लिए खाना लाते हैं, 10वां अंश लाते हैं। क्या नहीं देते वो? ऐसी गदियां बन जाइए। आज ये भी एक गधा जिसपे यीशु चढ़ के सवार होके आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत पसंद है क्योंकि मैं गधी की तरह बेकार पढ़ लिख के अंदर बैठी हुई थी। परमेश्वर का संदेशा मिला कि तुम मेरे लिए। हमने छोड़ दिए वो रुतबे, हमने छोड़ दी वो सारी बातें, हमने छोड़ दिया वो सब कुछ जो ये कहते हैं, जो वचन कहता है कि धनी स्वर्ग में नहीं जा सकता, धनी स्वर्ग जा सकता है। हालेलुया। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। हालेलुया। 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 उसका धन जो हमें दिया गया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोठड़ी में, जो अपनी तिजोरी में बंद करने के लिए उसको सड़ने मत दीजिए, उसका फिक्र मत कीजिए, उसकी चिंता के लिए मरे मत जाइए, उसे यीशु के लिए लगा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा धन पाएंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। मैं सिर्फ वचन बोलती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। हालेलुया। करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना अच्छा लगता है। जब तक मुझसे ना हो मैं चुप रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, क्योंकि हम गधे तो हैं। सुनना हमारा काम है। भार ढोने वाले किसका? मरीजों का, गधों का, बेड़ियों का, गरीबी का,
बीमारी का, गरीबों का, पूरी कलीसिया का, दुष्टों का सारा बोझ हम पर आता है और हम घुटनों पे रहते हैं और भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और दिन रात एक अच्छी गदही बन के आप लोगों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। झुकना बहुत जरूरी है। जो झुकते नहीं वो फलते नहीं। हालेलुया। मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मैं सेवा करूं, लेकिन घर में एक गधी की तरह ज्यादा पढ़ लिख के भी बांधी हुई थी। लेकिन प्रभु का संदेश पहुंचा, वहां से आजादी मिली यीशु के लहू से और आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही चाहती हूँ। रोटी बनाना तो सभी जानते हैं, कपड़े धोने सभी जानते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो औरतें नहीं कर सकती। हालेलुया। पुराने मंदिर में औरतों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। पुराने मंदिर में जो वाचा के संदूक के सामने जो तंबू था, जो तंबू के अंदर वाचा का संदूक था, जिसके अंदर उसका वचन था, हारून की छड़ी थी, मर्दबान में वो मन्ना था। हालेलुया। उसमें 3 चीजें थी। एक इस्राएलियों की वो रोटी, वो मन्ना जो मर्दबान में, सोने के मर्दबान के अंदर, वाचा की संदूक के अंदर। एक हारून की वो छड़ी ही क्यों? आप ध्यान से पढ़िएगा उस चैप्टर को। जब सभी जितने प्राचीन वहां बैठे थे, सबको कहा कि तंबू के वहां जगवेदी के बाहर छड़ियां रख दीजिए। सबने छड़ियां रखी, हारून की छड़ी भी रखी है। तो किसी की छड़ी को फूल नहीं निकले और हारून की छड़ी को फूल के साथ बादाम भी लगे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो बादाम क्यों? वो बादाम इसलिए कि प्रभु ने उस लकड़ी को जो हारून की थी, जो याजक था उस समय का, उसे कबूल किया और उसे कहा, ये मुझ में से पुंगरा है, मेरा वचन बादाम इसको लग गया है, इसे लाया जाए और अब ये मेरा काम करेगा। हालेलुया। याजक बनना है तो ऐसे बने, नहीं तो छोड़ दीजिए। हालेलुया। अपनी छड़ी रखिए, अपने आप को परमेश्वर की जगवेदी के सामने रखिए। अगर दूत आते हैं, बातचीत होती है आपके साथ, तो इसका मतलब है आप फलदायक हैं। हालेलुया। पर टलना नहीं यीशु दा कलाम, पूज विच खास होना लाड़ी ने, जिन्नू समझी दी दुनिया धरती ते आसमान टलने, पर टलना नहीं यीशु दा कलाम, पूज विच खास होना लाड़ी ने, जिन्नू समझ दी दुनिया कर मेरे दे गीता ने, यसू दे नाल परीता ने, झंडा जितदा मैदाना विच कट जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन